تو آج ہمارے سامنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر ایک گائیڈ ہے اور یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے جی کہ 2025 کی اس شور سے بھری دنیا میں جہاں ہر شخص، ہر کمپنی آن لائن توجہ حاصل کرنے کی دوڑ میں ہے، بالکل ہر طرف شور ہے. تو کوئی چھوٹا کاروبار یا ایک فرد بھیڑ سے الگ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ گائیڈ کہتی ہے کہ جواب زیادہ اشتہار چلانے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ذہین نظام، ایک سسٹم بنانے میں ہے جو صفر سے بھی کام کر سکتا ہے. تو چلیں اس نظام کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں. یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور اس گائیڈ کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ صرف تھیوری پر نہیں رکتی. یہ پورے نظام کو یوں سمجھیں ایک مشین کی طرح دیکھتی ہے جس کے مختلف پرزے ہیں. اچھا. روایتی مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بنیادی فرق ہی یہی ہے. روایتی مارکیٹنگ جیسے اخبار یا ٹی وی وہ ایک میگا فون کی طرح ہے. آپ بس سب پر چلاتے ہیں. بالکل، آپ سب پر چلاتے ہیں اس امید پر کہ کوئی سن لے. جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک لیزر کی طرح ہے. آپ صرف اس شخص سے بات کرتے ہیں جسے آپ کی بات سننے میں شاید دلچسپی ہو. اور آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس نے سنی یا نہیں. جی، یہی تو اصل طاقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیزر جیسے نظام کی بنیاد کیا ہے؟ گائیڈ اسے 4 ستونوں میں تقسیم کرتی ہے. پہلا ہے ٹریفک، یعنی لوگوں کو اپنی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پیج پر لانا. یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے. ہاں، یہ پہلا قدم ہے. لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے جو گائیڈ شروع میں ہی واضح کرتی ہے. کیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل کام ٹریفک لانا ہے، لیکن حقیقت میں آج کے دور میں ٹریفک خریدنا وہ نسبتاً آسان ہے. اچھا. آپ فیس بک یا گوگل کو پیسے دے کر لوگوں کو اپنی ویب سائٹ پر بھیج سکتے ہیں. اصل چیلنج دوسرے اور تیسرے ستون میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا ستون ہے مواد، کنٹینٹ، یعنی جو کچھ آپ اس آنے والی ٹریفک کو دکھاتے ہیں. کوئی ویڈیو، کوئی آرٹیکل چلی جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مہمانوں کو گھر بلائیں لیکن ان سے بات ہی نہ کریں. کیا خوب مثال دی ہے. بالکل یہی بات ہے. اور پھر آتا ہے تیسرا ستون، تبدیلی، کنورژن. یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی وزٹر آپ کا گاہک بنتا ہے، یعنی کچھ خریدتا ہے یا آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دیتا ہے، کوئی بھی ایکشن لیتا ہے. تو گائیڈ کہتی ہے کہ اصل چیلنج یہاں ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں یوں کہہ لیں 90% کاروبار ناکام ہوتے ہیں. ٹریفک لانا اور انہیں مواد دکھانا ایک بات ہے، لیکن ان کا اعتماد جیت کر انہیں اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر راضی کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے. جی، یہ اعتماد پیدا کرنا ہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سب سے مشکل اور سب سے اہم کام ہے، اور یہ چوتھے ستون کے بغیر ناممکن ہے. چوتھا ستون ہے تجزیہ، اینالیٹکس، یعنی ڈیٹا کو دیکھنا اور سمجھنا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اعتماد جیتنے کا تعلق ڈیٹا سے ہے؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے. اس کا بہت گہرا تعلق ہے. تجزیہ آپ کو بتاتا ہے کہ لوگ آپ کے مواد کے کس حصے پر رک رہے ہیں، کون سی بات انہیں پسند آ رہی ہے، اور وہ کہاں آ کر خریداری کا فیصلہ ترک کر رہے ہیں. اچھا. کیا آپ کی قیمت زیادہ ہے؟ کیا آپ کی ویب سائٹ سست ہے؟ کیا آپ کی پیشکش واضح نہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب ڈیٹا میں چھپے ہوتے ہیں. اور ان جوابات کو استعمال کر کے آپ اپنے مواد کو بہتر بناتے ہیں؟ بالکل، جس سے اعتماد بڑھتا ہے اور تبدیلی کی شرح بہتر ہوتی ہے. یہ ایک مسلسل چکر ہے، ٹریفک، پھر مواد، پھر تبدیلی، پھر تجزیہ، اور پھر دوبارہ بہتر مواد. جی بالکل. سمجھ گیا. تو یہ چاروں ستون الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انجن کے پرزے ہیں. اچھا، یہ تو تھیوری ہو گئی. اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا مجھے انتظار تھا. یہ کام عملی طور پر کن میدانوں میں کیا جاتا ہے؟ گائیڈ میں 5 بڑے شعبوں کا ذکر ہے. سب سے پہلا ہے SEO، یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ہاں. SEO کا مطلب ہے اپنی ویب سائٹ کو گوگل کے لیے اتنا پرکشش بنانا کہ وہ اسے پہلے صفحے پر دکھائے. گائیڈ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے: آن پیج SEO، ویب سائٹ کے اندر کی تبدیلیاں، اور آف پیج SEO، یعنی دوسری ویب سائٹ سے لنکس حاصل کرنا. لیکن گائیڈ ایک تیسری زیادہ اہم چیز پر زور دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ اسے یوزر انٹینٹ یا صارف کا ارادہ کہتے ہیں. یوزر انٹینٹ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گوگل اب صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پر کتنی بار بہترین جوتے کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا. گوگل یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب کوئی شخص بہترین جوتے تلاش کرتا ہے
तो वो असल में चाहता क्या है? क्या वो जूते खरीदना चाहता है? या शायद उनके रिव्यूज पढ़ना चाहता हो। बिल्कुल। या ये जानना चाहता हो कि जूते साफ कैसे किए जाते हैं। कामयाब एसईओ अब सिर्फ सही अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि सारिफ के इस इरादे को बेहतरीन तरीके से पूरा करना है। तो अगर आपका मवाद सारिफ के इरादे को पूरा करता है तो गूगल आपको इनाम देगा। जी बिल्कुल, आपको पहले नंबर पर लाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब गूगल से ज्यादा अपने सारिफ के बारे में सोचना है। अच्छा, अगला शोबा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। यहाँ गाइड क्या नई बात बताती है? गाइड यहाँ एक अहम फर्क वाजे करती है। सोशल मीडिया का असल मकसद फौरी तौर पर चीजें बेचना नहीं है। नहीं तो फिर क्या है? इसका असल मकसद एक कम्युनिटी बनाना है। लोग सोशल मीडिया पर इश्तिहार देखने नहीं आते हैं ना, वो दोस्तों से जुड़ने और तफरीह के लिए आते हैं। ये तो सही बात है। इसलिए कामयाब ब्रांड्स वो हैं जो अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करने के बजाय लोगों को मुफीद या तफरीही मवाद देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें महसूस करवाते हैं कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और जब ये कम्युनिटी बन जाती है तो फरोख्त खुद ब खुद होती है। बिल्कुल, एतमाद की वजह से। लेकिन बहुत से बिजनेस तो सिर्फ इश्तेहारी चलाते हैं, जिसे पीपीसी या पे पर क्लिक कहते हैं। क्या ये कम्युनिटी बनाने से बेहतर और तेज तरीका नहीं? ये एक बेहतरीन सवाल है। पीपीसी जैसे गूगल एड्स या फेसबुक एड्स आपको फौरी नताइज दे सकता है। आप आज पैसे लगाते हैं और कल से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, उन कारोबारों के लिए बेहतरीन है जिन्हें फौरी फरोख्त चाहिए। लेकिन इसका एक मसला है। वो क्या? जैसे ही आप पैसे देना बंद करते हैं, ट्रैफिक भी फौरन रुक जाती है। ओह, ये किराए के घर की तरह है। दूसरी तरफ एसईओ और कम्युनिटी बनाना अपना घर बनाने जैसा है। इसमें वक्त और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार बन जाए तो ये आपको तवील मुद्दत तक मुफ्त में फल देता रहता है। तो ये एक तरह से रफ्तार और पायदारी के दरमियान इंतखाब है। अच्छा, चौथा शोबा है ईमेल मार्केटिंग। सच कहूं कि ये सुनकर हैरत होती है, क्योंकि आजकल तो सभी के इनबॉक्स स्पैम से भरे होते हैं। बिल्कुल भरे होते हैं। तो गाइड इस बात को कैसे जस्टिफाई करती है कि लोग अब भी मार्केटिंग ईमेल्स खोलते हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ज्यादातर मार्केटिंग ईमेल्स स्पैम ही होती हैं। लेकिन गाइड कहती है कि ईमेल मार्केटिंग की ताकत मास ईमेल में नहीं, बल्कि पर्सनलाइज्ड यानी ज़ाती नोयत की ईमेल में है। अच्छा, इससे क्या मुराद है? ये उन लोगों से बात करने का जरिया है जो पहले ही आप में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। वो आपके ग्राहक हैं या उन्होंने आपके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप किया है। ठीक है। आप उन्हें उनकी दिलचस्पी की बुनियाद पर मुफीद मालूमात, खुसूसी रियायतें या उनके नाम से ज़ाती पैगामात भेज सकते हैं। ये एक ऐसा चैनल है जिसे आप खुद कंट्रोल करते हैं। फेसबुक या गूगल के एल्गोरिदम के रहमो करम पर नहीं होते। बिल्कुल। इसीलिए आज भी ये सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श मार्केटिंग चैनल माना जाता है। और आखिर में पांचवा शोबा, कंटेंट मार्केटिंग। ये तो लगता है बाकी सब शोबों की जड़ है। आप इसे रूह कह सकती हैं। कंटेंट मार्केटिंग का फलसफा ये है कि बेचने के बजाय मदद की जाए। दिलचस्प। अगर आप कैमरा बेचते हैं तो आप फोटोग्राफी सिखाने पर वीडियोस बनाएं। अगर आप जिल्द की देखभाल की मसनूआत बेचते हैं तो जिल्द को सेहतमंद रखने के तरीकों पर ब्लॉग लिखें। इससे आप अपनी फील्ड में एक माहिर के तौर पर जाने जाते हैं। जी, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और जब उन्हें कैमरा या क्रीम खरीदनी होती है तो वो उस दुकानदार के पास नहीं जाते जो सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, बल्कि उस माहिर के पास जाते हैं जिसने उनकी मदद की थी। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता? एक छोटा कारोबार जो फौरी सेल्स चाहता है, वो महीनों तक मुफ्त में मवाद बनाने का इंतजार कैसे कर सकता है? क्या पीपीसी उसके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं? ये बिल्कुल वही रफ्तार मुकाबला पायदारी वाली बहस है। एक अच्छी हिकमत अमली में अक्सर इन दोनों का इम्तजाज होता है। अच्छा, दोनों एक साथ? जी, आप पीपीसी से फौरी ट्रैफिक और सेल्स हासिल करते हैं ताकि आपका कारोबार चलता रहे, और इसके साथ साथ आप तवील मुद्दती कामयाबी के लिए एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग पर भी काम करते रहते हैं। तो शुरू में आपका 80% बजट पीपीसी पर और 20% कंटेंट पर। हो सकता है वक्त के साथ जैसे जैसे आपका एसईओ और कंटेंट काम करना शुरू करता है, ये तनासुब उलट सकता है। ये सब शोबे अपनी जगह बहुत ताकतवर लगते हैं, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, लेकिन ये सब अलग अलग पुर्जों की तरह हैं। गाइड इन्हें एक साथ जोड़कर एक चलती हुई मशीन
यानी एक कामयाब मुहिम बनाने के बारे में क्या कहती है? गाइड उसके लिए 5 मरहलों का एक फ्रेमवर्क देती है। पहला है हदफ का तयन। ठीक है। ये बहुत बुनियादी लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक एक बुरा हदफ है। तो अच्छा हदफ क्या होगा? 3 महीनों में अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट की फरोख्त 20% बढ़ाना एक अच्छा काबिल पैमाइश हदफ है। समझ गया। हदफ वाज़े होने के बाद अगला कदम है अपने हदफशुदा सामीन को पहचानना। आपका ग्राहक कौन है? जी, और ये सिर्फ उम्र और जिन्स जानने से कहीं ज्यादा है। गाइड में एक बड़ी मजेदार मिसाल है। बताइए। फर्ज करें आप महंगी ऑर्गेनिक कॉफी बेच रही हैं। आपका इश्तिहार एक 18 साला तालिब इल्म को दिखाना, जिसे शायद कीमत की परवाह है, पैसे जाया करने के बराबर है। सही। लेकिन वही इश्तिहार एक 35 साला प्रोफेशनल को दिखाना, जो अच्छी सेहत और मेयार की कदर करता है और उसके लिए इजाफी रकम खर्च करने को तैयार है। बिल्कुल, वो सोने की कान साबित हो सकता है। आपको अपने ग्राहक की ख्वाहिशात, मसाइल और ऑनलाइन आदात को समझना होता है। और जब आप अपने ग्राहक को जान लेते हैं, तब आप तीसरे मरहले पर आते हैं, सही चैनल का इंतखाब, यानी ये फैसला करना कि आप इस ग्राहक से कहाँ बात करेंगे। जी, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर या गूगल सर्च के जरिए। आपकी ऑर्गेनिक कॉफ़ी का इश्तिहार शायद इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अच्छा काम करेगा, जहां आप खूबसूरत तस्वीर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो लिंक्डइन या गूगल सर्च ज्यादा मौसर होगा, क्योंकि वहां लोग कारोबारी हल तलाश कर रहे होते हैं। गलत चैनल पर बेहतरीन इश्तिहार चलाना भी बेफायदा है। तो उसके बाद चौथा मरहला आता है, मवाद की तैयारी, और फिर आखिर में पांचवां और सबसे अहम मरहला, तज्जिया और बेहतरी। यही वो मरहला है जो इस पूरे अमल को जिंदा रखता है। जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। आप एक मुहिम चलाते हैं, डेटा देखते हैं और सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शायद आपको पता चले कि नीले बटन वाली तस्वीर पर लाल बटन वाली तस्वीर से ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, या शायद आपकी वीडियो ख़वातीन को ज़्यादा पसंद आ रही है। आप इस मालूमात की बुनियाद पर अपनी मुहिम को बेहतर बनाते हैं। ये मुसलसल तजुर्बा करने और सीखने का अमल है। तो ठीक है, ये सब बहुत कुछ है। कोई नया शख्स जो ये सब सुन रहा है और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखना चाहता है, वो कहाँ से शुरू करें? गाइड उसके लिए एक अमली रोड मैप देती है। पहला कदम है बुनियादी उसूल सीखना। हाँ, और उसके लिए हजारों रुपए के कोर्सेज की जरूरत नहीं है। गूगल का डिजिटल गैराज या यूट्यूब पर बेशुमार मुफ्त और मेयारी मवाद मौजूद है। मकसद सिर्फ बुनियादी इस्तिलाहात से वाकिफ होना है। जी, ताकि आपको गुफ्तगू की ज़बान समझ आ सके। जब बुनियादी बातें समझ आ जाएं, तो दूसरा कदम है एक शोबा मुंतखब करना। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश ना करें। ये सबसे आम गलती है। लोग एक ही वक्त में एसईओ, फेसबुक एड्स और यूट्यूब सब सीखना चाहते हैं और आखिर में कुछ भी नहीं सीख पाते। तो क्या करना चाहिए? गाइड का मशवरा है कि अपनी दिलचस्पी या शख्सियत के मुताबिक कोई एक शोबा चुनें। अगर आपको लिखना और तहकीक करना पसंद है, तो एसईओ या कंटेंट मार्केटिंग से शुरू करें। और अगर आप ज्यादा तख्लीकी और बसरी हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बेहतर हो सकती है। एक चीज में माहिर बने, फिर आगे बढ़े। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, अमली काम करना। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अमली काम में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अक्सर लोग एक ब्लॉग शुरू करते हैं, 2 पोस्ट लिखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें फौरी नताइज नहीं मिलते। गाइड इस बारे में क्या कहती है? गाइड कहती है कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। थियोरी आपको तैराकी के उसूल सिखा सकती है, लेकिन जब तक आप रोज पानी में नहीं उतरेंगे, आपको तैरना नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करें। एक इंस्टाग्राम पेज, किसी ऐसी चीज के बारे में जिसमें आपको दिलचस्पी हो, या अपने मोहल्ले की किसी छोटी दुकान के लिए फेसबुक पेज बनाकर उसे चलाने की कोशिश करें। नताइज की फिक्र ना करें, सिर्फ अमल पर तवज्जो दें। बिल्कुल, आप जो कुछ भी सीखेंगे वो गलतियां करने से ही सीखेंगे। चौथा कदम है टूल्स का इस्तेमाल सीखना, जैसे गूगल एनालिटिक्स, कैनवा वगैरह। ये टूल्स आपके हथियार हैं। शुरू में ये मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये आपका काम बहुत आसान बना देते हैं। गूगल एनालिटिक्स आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पर लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
اور کینوا ڈیزائننگ کے لیے؟ جی، کینوا آپ کو بغیر کسی ڈیزائننگ کی مہارت کے خوبصورت تصویریں بنانے دیتا ہے۔ ان پر روز تھوڑا وقت گزارنا ضروری ہے۔ اور جب آپ کے پاس تھوڑا علم، عملی تجربہ اور ٹولز کی سمجھ آ جائے تو 5واں قدم ہے فری لانسنگ یا انٹرنشپ۔ جی، فائیور یا اپ ورک جیسی ویب سائٹس پر بہت چھوٹی کم قیمت والی سروسز دینا شروع کریں۔ جیسے میں آپ کی ویب سائٹ کے لیے 500 الفاظ کا ایک بلاگ لکھوں گا۔ اس سے آپ کو حقیقی دنیا کے پروجیکٹس پر کام کرنے کا تجربہ ملے گا اور آپ کا پورٹ فولیو بننا شروع ہو جائے گا، چاہے آپ شروع میں بہت کم پیسے کمائیں۔ یہ خود اعتمادی پیدا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک منظم عمل ہے جو ٹریفک، مواد، تبدیلی اور تجزیہ کے ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس میں کامیابی کا راز تمام شعبوں میں تھوڑا تھوڑا جاننے میں نہیں بلکہ کسی ایک شعبے کا انتخاب کر کے اس پر گہرائی میں عملی کام کرنے میں ہے۔ جیسا کہ گائیڈ کہتی ہے، سوچنے سے زیادہ کرنے پر توجہ دیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتی ہوں۔ اس پوری گائیڈ میں ڈیٹا اور تجزیے پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن ڈیٹا خود کچھ نہیں بتاتا، آپ کو اس سے صحیح سوال پوچھنے پڑتے ہیں۔ اچھا۔ اگر کوئی آج اپنا پہلا پریکٹس پروجیکٹ جیسے کوئی انسٹاگرام پیج شروع کرتا ہے تو کتنے فالوورز بڑھے سے بہتر سوال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا ایک پیمانہ، ایک میٹرک ہو سکتا ہے جو فالوورز کی تعداد سے زیادہ کہانی بیان کرتا ہو کہ آیا وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں؟